مارا گیا حسین جو میدان کربلا، مارا گیا حسین جو میدان کربلا، حسین 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 شہید کربلا شہید کربلا اس خون اقدس کی قسم برپا کریں گے مجلس غم، پھرتی رہی درباروں میں ہم شیر بیردا حسین سن ہے اصغر پیاسا بھی، دیتی ہے ماں دلاسا بھی، آؤں گی تجھ سے ملنے کو جب قبر بنا لے گا حسین، وین کربلا وچ جڑی رباب پاوے، وین کربلا وچ جڑی رباب پاوے، اسے ماں دا لال پیاسا، اسے ماں دا لال پیاسا، نہ دنیا تو جاوے، تنہائی میں ہمارے ملک کے حالات کے حوالے سے آپ امام حسین علیہ السلام کا غم جو ہے، یا امام حسین علیہ السلام صرف کسی خاص مذہب فرقے کے نہیں بلکہ وہ مسلم انسانیت ہے، ان کا احسان پوری انسانیت پہ ہے، صرف مسلمانوں پہ بھی نہیں، ہر مذہب پہ ہے، ہر فرقے پہ ہے، اور ہر انسان پہ ان کا احسان ہے، اور ان کے اس احسان کو یاد کر کے ہم کو یاد کر کے انہوں نے ان ایام کا منانا جو ہے وہ سنت رسول ہمارے پہ یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ حکومتی سطح پہ بھی اور ایک معاشرے کی سطح پہ بھی کہ تمام مسلمانوں کو جوڑ کے، اور یہ مہینہ محرم کا اور سفر کا مہینہ بہت ہی عزت احترام امن اور سکون اور سلامتی سے گزر جائے، کیونکہ یہ سب سے بڑی جو ہے وہ اللہ کا اسکول کے لیے بھی اور تمام معاشرے کے لیے۔ تو اب اگر آپ علی صاحب کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں کیا انتظامات دیکھتے ہیں کہ علاج ہے وہ کیسی ہے، ہمیں محرم کے انداز سے محرم بنانا چاہیے، ہمارے بچے مسلمین کو کس طرح سے دیکھیے اوور آل جو ہے نا فائزین کی کیا ذمہ داری ہے؟ ذمہ داری تو یہ ہے کہ جو بھی ذاکرین ہیں، علماء کرام ہیں، وہ جو رسول خدا کی اولاد کی سیرت ہے اس کو بیان کریں، ان پہ ہونے والے ظلم کو بیان کریں، اور باقی جو فرقے ہیں، مذہب ہیں، ان کے جو علماء کرام ہیں وہ بھی محرم کے حوالے سے اپنی بات کریں، کسی کو غلط نہ کہیں، ہر ایک نے اپنا جواب خود دینا ہے۔ اور اوور آل اگر آپ دیکھیں نا پنجاب میں میرا جو تجربہ ہے 90% ایریا ایسا ہے جہاں پہ سنی شیعہ کسی کی کوئی فرق نہیں ہے محرم میں۔ میرا اپنا ایریا ہے، میرا گاؤں ہے اٹک میں، آپ جو یہ محرم کا جلوس ہے جس مسجد سے مرضی نکال لیں کوئی روکنے والا نہیں۔ عید میلاد النبی کی جلوس ہے جس امام بارگاہ سے مرضی نکال لیں کوئی نہیں، سارے ساتھ چلتے ہیں۔ تو ایک بہترین جو ہے ماحول ہے، اس میں کچھ شر پسند عناصر جو ملک دشمن ہے کچھ گاڑی ڈالتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں آگ لگانے کی، اس کو پھر آغا صاحب جیسے ہمارے بزرگ جن کی بڑی خدمات ہیں اس لاہور کے بھی لیے بھی اپنے جو مسلک ہے اس کے لیے بھی اور تمام مسلمانوں کے لیے، ان کا پھر کردار ہے کہ انہوں نے جوڑنا ہے اور اس کرداری کو جو ہے وہ آگ کی صورت میں اختیار کرنا ہے، اور ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہے سب نے، حکومتی سطح پہ پولیس، مختلف سیکورٹی ادارے اپنی بھرپور
देते हैं। और ये जो शिया मसलक है ये तो बहुत ताउन करते हैं हमेशा, और कभी इन्होंने कोई इस किस्म की बात नहीं की कि सिक्योरिटी इदारों से हट के, बल्कि उसके साथ मिल के और बेहतरीन तरीके से ये प्रोग्राम जो है वो अपने इख्तिताम पसीर होते हैं। अल्लाह से दुआ है इसी तरह ये पुरअमन मुहर्रम की गुजरे और सफर की गुजरे। बोला साहब ये बताइएगा कि कल पार्लियामेंटेरियंस का आपने इजलास बुलाया है, उसमें आपकी तरफ से क्या राय उनको दी गई और क्या फैसला किया? देखिए उसमें राय ये है कि अपने इलाके की मुश्किलात की बात करें। लोग मुश्किल में हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, अपना देखिए जिस किसी की एक मुतवास या लोअर मिडिल क्लास के 3 बच्चे हैं, उनकी स्कूलों की फीस वो नहीं दे सकते। 53 रुपये यूनिट बिजली है, बिजली के बिल देना लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। और जो मुश्किलात हैं उनको हाईलाइट करना पीपल्स पार्टी की जिम्मेदारी है, और इस गरीब अवाम के साथ खड़ा होना पीपल्स पार्टी की जिम्मेदारी है। वहाँ पे भी हमारा डिस्कशन हुआ कि वो लोगों की मुश्किलात जो है उस पर बात करें और कोशिश करें कि हुकूमत ज़्यादा से ज़्यादा जो रिलीफ दे सकती है वो गरीब लोगों के लिए दे, ताकि कुछ ये तो मुझे बताइएगा कि सिक्योरिटी के जो मामलात हैं वो आपकी देखते हैं, क्या समझते हैं कि अगर आपकी गवर्नमेंट होती सिक्योरिटी कैसी होती है? अभी जो मौजूदा सिक्योरिटी है इस पर इत्मीनान का इज़हार करते हैं। देखिए सिक्योरिटी पूरी कोशिश होती है और बड़ी फुल प्रूफ सिक्योरिटी होती है, तमाम इदारे उसके लिए बड़ा मजबूत जो है वो कोशिश करते हैं। लेकिन इदारों की सिक्योरिटी से ज़्यादा जो है ना वो कम्युनिटी ने जो है उस चीज़ को लेके आना चाहिए। अब जो जुलूस इतना बड़ा यहाँ से बरामद होता है उसकी समझ जो आगा साहब को है वो एक बार से आए हुए SP को नहीं, तो ये गाइड जो करेगी वही बेहतर बात होगी। और मैं एक सिर्फ ये मैसेज देना चाहता हूँ कि सिक्योरिटी इदारे सिक्योरिटी करते हैं, लेकिन उन्हें चाहिए कि जो बानियान है उनसे मिल के वो चले। जब वो हद से बढ़ के अपनी जो है वो सख्ती करते हैं तो जो एरियाज़ हैं वहाँ पे जैसे मैंने कहा कि कोई इख्तिलाफ राय है ही नहीं, हर मसलक जो है वो मोहम्मद हुसैन इस्लाम के इस जुलूस में शामिल होता है। अपना हिस्सा क्रिश्चियन मैंने देखे, हिंदू मैंने देखे, सारे इसमें शामिल होते हैं। तो वहाँ पर जब ओवर सिक्योरिटी होती है तो उससे खराबियाँ पैदा होती हैं, उससे इख्तिलाफ राय होता है और एक चीज़ जो अच्छे तरीके से जा रही होती है वो खराब होती है। तो जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए सिक्योरिटी को भी और बनियान से मिल के करना चाहिए। अच्छा गवर्नर साहब ये बताइएगा कि आज एक अहम फैसला हुआ है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हौसला कमी हुई है, तो उस फैसले को कैसे देखते हैं? और एक म्यूजिकल चेयर का इस वक्त तासुर पाया जाता है वफाक के हवाले से, क्या तासुर पाया? म्यूजिकल चेयर का, यानी कि ये एक वज़ीर दाखिला बनने वाले हैं, ये वज़ीर हाजा बनने वाले हैं, क्या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वज़ीर आज़म की कुर्सी के ख्वाहिशमंद हैं अभी? देखिए बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ख्वाहिशमंद हैं या नहीं है, हम ख्वाहिशमंद जरूर हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर बने, लेकिन हम चाहते ये हैं कि अगले इलेक्शन में अवाम के वोटों से, उनकी ताकत से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को हम इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहते हैं। कोई म्यूज़िकल चेयर नहीं है, सिस्टम को चलना चाहिए, मुल्क को बेहतर होना चाहिए। इन 4 साल में इकानमी जिस तरह से बेहतर होनी चाहिए थी नहीं हो सकी। मैं अब हुकूमती सतह पे आके सिर्फ तारीफ़ें नहीं कर सकता, मुझे पता है कि जो लोग हैं वो मुश्किल में हैं, उनका सोचना बड़ा ज़रूरी है। शायद गवर्नर हाउस में AC लगे हुए हैं, वहाँ पे मैं बैठा हूँ, वहाँ सारा ठीक है, चीफ मिनिस्टर हाउस में सारा ठीक है, प्राइम मिनिस्टर हाउस में सारा ठीक है, लेकिन ये जो मोटरसाइकिल पे 4-4 बच्चों को उनके बस्ते साथ लटका के स्कूलों को छोड़ने जाते हैं इस गर्मी में, अगर उनके पास वसाइल हो तो वो मोटरसाइकिल पे लटका के उनको ना लेके जाए, उनके लिए वो स्कूल वैन लगवाएं। तो उन बेचारे को इतना पेट्रोल नहीं बर्दाश्त कर सकते कि वो अपने बच्चों को जो है वो छोड़ने जाए, तो लोग मुश्किल में है, उनका सोचना बड़ा ज़रूरी है। और ये हम पे जिम्मेदारी है कि हम उनके लिए सोचें और उनके लिए आसान बजाय इसके कि हम ये करते रहे कि फलां उठ जाए फलां बैठ जाए, ये बात की चीज़ें हैं, पहले आवाम का सोचें। अगर तो आपसे एक सवाल छोड़ो, आप वली है पिछली दफ़ा जुलूस जो है वो अशूरा का वक्त से पहले जो है वो फर्ज कर दिया गया, क्या इस दफ़ा भी आप पर किसी तरह का दबाव है? और कुछ लोगों को पिछली दफ़ा कहा था कि शायद आगर साहब जो है वो कोई मुकदमे से डर की वजह से आप लोगों को गलत फहमी है, कभी भी हमारे पर कोई दबाव नहीं है। और
पिछले आप पिछले सालों से देखें अभी तो 8:01 पे या 8 बजने में 1 मिनट से पहले कभी नहीं हुआ। 8 बजे हमारा जुलूस हुआ था पिछली मरतबा। असल चीज़ पता क्या बात है कि सुजना का अपना एक मिजाज है, ठीक है। अगर वो चल पड़े, अभी वो किसी जगह पे पब्लिक ज़्यादा होती जा रही है ना, पब्लिक तो उस पर अपना हमारे ऊपर दबाव किसी का नहीं, लेकिन ये है कि अपने टाइम पे मिल जाओ। बैनुल मसालिक खामानगी के हवाले से फरमाइएगा कि बैनुल मसालिक खामानगी की बातें होती हैं, आपको प्रैक्टिकली भी नज़र आता है या उसमें अभी कोई गुंजाइश मौजूद है? नहीं बेटा, ये ऐसी बात है, लेकिन मैं आपको बात मौला अली साहब का एक फरमान है, मौला अली साहब फरमाते हैं कुफर के बाद सबसे बड़ा गुनाह जो है वो दिलआज़ारी है, चाहे वो किसी मोमिन की हो चाहे वो किसी काफिर की हो। आप दिलआज़ारी मत करें। अगर हमारे साथीन जो आके मेंबर पे बैठते हैं, हमारे आदमी जो मेंबर पे बैठते हैं, अगर वो अपनी ज़बान में मिठास रखे और किसी को छेड़े ना, तो आप यकीन करें खुदा को है कभी सवाल ही पैदा नहीं, तो जो हमसे दूर जा रहे हैं वो हमारे करीब आएंगे। मौला इमाम सैयद सज्जाद फरमाते हैं कि हमारे फ़ज़ाइल इतने वसी हैं कि आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत ही नहीं है। सबसे बड़ी बात है अपने मसले को छोड़ो ना, दूसरे पर छेड़ो ना। तो हम इस फॉर्मूले में चल रहे हैं, हम लोग कहाँ क्या तो बाकी रहा इंतजाम के हवाले से मैं अगर बात बोलूँ, इंतजाम बहुत अच्छे, इतने अच्छे इंतजाम कि ये वो हमारे सबसे बड़ी बात है कि इस वक्त सियासत नहीं है। आज हमारी कोई सियासत को नहीं होगी। आज तक मैंने कभी चीफ मिनिस्टर से गिला से सुना कि हमारे ज़ायरीन हम अपने ज़ायरीन के लिए ये हमारी चीफ मिनिस्टर कह रही है, हम अपने ज़ायरीन के लिए गुलाब के अरग के साथ सड़कें धुलाएंगे, छबीलें लगाएंगे, ठीक है। हम खाना भी देंगे, न्याज भी देंगे, और ये चीफ मिनिस्टर कह रही है कि आप अब तनहा नहीं छोड़ेंगे, आप सब आपको खा गया। मेरे भाई का नाम हसन नवाज है, मेरे भाई का नाम हुसैन नवाज है। तो इसमें देखिए आप हुकूमत पंजाब जब इतना ताउन सिखा रही है, हमारा हक बनता हम मिलता हूँ। हम वो है अली अलैहिस्सलाम के मानने वाले। भाई मैं आपको एक आपकी इन्फॉर्मेशन दी, भाई पता क्या बात है, हम लोग एहसान फरामोश में ये वाक़या करबला जब हुआ ना, वाक़या करबला तो 72 शोधा जब शहीद हो गए ना, तो उस वक्त नबी ज़ातियों को ना असीर करके करबला से कूफा से शाम ले जाए। रास्ते में किसी ने अननोन पर्सन अगर एक गिलास का पानी भी पिलाया ना, तो अली की बेटी ने पता क्या जवाब दिया कि तूने आज हमारे ऊपर एहसान किया, रोज़े महशर में मैं तेरे सामने होंगी, ठीक है। तो हम लोग एहसान फरामोश नहीं है, हमारे ऊपर कोई थोड़ा सा एहसान करके देखिए। हमने पता क्या बात है, ये जो जंग है ना, ये जंग ये हुसैन में जंग नहीं लगी। अगर हुसैन जंग के लिए आते तो क्या 6 महीने के बच्चे शहजादा अलैहिस्सलाम को लेकर आते? हुसैन की 4 साल बच्ची बीबी सैयदा मुस्किना सामना थप्पड़ बनवाने के लेकर आते कि जो सिमर मार रहा है। क्या बात है, अभी हमारे गौरव साहब एक बड़ी खूबसूरत बात की है कि हुसैन जो है ना एक इंसानियत का शहंशाह है, ये शियत की जागीर नहीं है। मुझे एक सवाल किया गया आज से 15-20 साल पहले कि आगा साहब आपको ये सिक्योरिटी की जरूरत कब से महसूस हुई? मैं कभी 15-20 साल 20-25 साल कहते इससे पहले आपको सिक्योरिटी की जरूरत नहीं थी। मैं बिल्कुल नहीं थी। कहते वो क्यों? रज़ाकार सारे सुन्नी होते थे, शबीले सारी सुन्नी लगाते थे, हम मातम करते थे, हमारी कमीज़ें वो पकड़ते थे, रात थके टूटे हम घर आते थे। हलीम का लंगर आज भी होता है, कल भी बनता था हमें अपना। तो ये एक अमन, इसका मतलब है कोई ना कोई ताकत है जो हमें सुन्नी शिया को लड़ाना चाहती है, लेकिन हम लड़ेंगे नहीं। हमें अल्लाह ताला ने इतना शौर दिया है, हम भी लड़ेंगे। हमें आगा साहब का बड़ा मुस्बत किरदार है यहाँ पे, तमाम कुछ साथ लेके चलने का, उनको ये खराज तहसील पेश करते हैं। जो इस वक्त वहाँ कंस्ट्रक्शन हो रही है, पास वो बन रहा है, सब उसी जगह आगे जुलूस खड़ा हो। उसमें ये है कि ये हमारा ये 2 सदियों पुराना ये रूट है, और हमारा लेसन से ये ब्रिटिश हुकूमत ने हमें नोटिफिकेशन दी है ये वाला, और रूट हमारा वही रहता है। बीच में थोड़ी सी कर्व आई है, लेकिन हमने अपना रूट नहीं बदलना अपना।
रूट हमारा वही रहता है हर हाल में। मुकाम वही रहेगा। वही मकाम वही रूट वही क्लास। पार्टी गेट से आना है हमने, पार्टी गेट से जरा सी थोड़ी टर्निंग है, टर्निंग पॉइंट है थोड़ा सा टर्न लेना हमने, तो वहीं से हमने सीधा जाके इंशाल्लाह हमारा टिकट होगा ना नहीं मतलब कोई सीख सकते हैं इंशाल्लाह, बस सीधा हमें इंशाल्लाह और तेजी से काम हो रहा है। हाँ बहुत तेजी से। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।